ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੋਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੋਗਲਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ, केवल चावला, अनीता, विजय चावला, सीमा, अनिल कुमार, राकेश कुमार, सुदेश रानी, विपुन कुमार, अनुराधा रानी, संजीव कुमार, सीमा रानी, रबीना, अवी मोगला, रॉबिन मोगला, शिवम मोगला, सैवी, वासु मोगला, सुमित चावला, सनवीशा, अचला गुलाटी, सैचल गुलाटी, आरुषि, वनीत चावला, जयंत चावला, ऋषभ कुमार, शिवानी मोगला, शीना मोगला, रोहन कालड़ा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਰੀ ਫਾਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੋਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਮਈ 1932 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। 1948 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ MS ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆੜਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1959 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ, ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੋਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਅਰੋੜ ਰਸਤਾ ਦੇ MC ਵੀ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, SD ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ 4 ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੈਡ ਚਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ MSGR ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ MSGR ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ MSGR ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ MS ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਸਰੂਪ, MS ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਐਂਡ ਸੰਸ, MSGR ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, MSGR ਟ੍ਰੇਡਰਸ, MSGR ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, MSGR ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਸ, MSRVS ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। सकेत कुंडलं सफेद वस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारमक्षफलकास्तुभस्त्रियं नमामि शिरसा विष्णुं चतुर्भुजं श्रीशङ्कराचार्य नवावतारं वेत्वतवरेण्यं जजतीन्द्रकोप्यं कलायुगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदाश्रे कल्पात्रिणं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं
आदरणीय भगवत कथामृत शास्त्रार्थ करता सज्जन वृंद, श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनों, यद्यपि इस वर्तमान समय में शोक दिवस का समय है, प्रवचन तो क्या, लेकिन जीवों के उद्धार के लिए भगवान की कथा ही सर्वस्व है। इसलिए पुरीयं दत्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित करता हूं। इस आधार पर थोड़ा प्रवचन भगवान की हो जाए, कथा हो जाए। वैसे आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए आज का मानव दानव से भी अधिक दुर्दान और बदतर होता जा रहा है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मानव शरीर प्राप्त करके भी लोग धीरे धीरे जो काम करना चाहिए उससे दूर भाग रहे हैं। भारतीय धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, प्रदर्शन मत करो, प्रदर्शन से प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण से वातावरण अशांत हो जाता है। तो अशांत वातावरण में अगर आप शांति प्राप्त करना चाहें तो बहुत मुश्किल है। पानी जब खौल रहा हो, अगर उसमें कोई अपनी परछाई देखनी चाहे तो दिखाई नहीं पड़ेगी। जब तक वह पानी ठंडा नहीं हो जाए, अस्थिर नहीं हो जाए, तब तक अपनी छाया, अपनी परछाई नहीं दिख सकती। तो शांति प्राप्त करने के लिए बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। और शांत तभी आप हो सकते हैं जब भगवान की कृपा आपके ऊपर है। सज्जना 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों की जब समाप्ति हो जाती है तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस में संकेत किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य का शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ। देवलोक में देवता भी लालायित रहते हैं कि मेरा जन्म मर्त्यलोक में हो, मनुष्य का शरीर मिले और भारतवर्ष में जन्म। विष्णु पुराण में एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुनत्वान्। देवलोक में देवता भी लालायित रहते हैं कि मेरा जन्म मर्त्यलोक में हो। मर्त्यलोक में ही क्यों और मनुष्य शरीर में ही क्यों और भारतवर्ष में ही क्यों?
मनुष्य शरीर में इसलिए कि दूसरे शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता, मात्र मनुष्य के शरीर से ही भगवान का भजन हो सकता। दूसरे जो शरीर है, जैसे पशु आदि के शरीर है, उनमें ज्ञान तो बहुत है। मनुस्मृति में भगवान मनु ने इशारा किया है, आहार निद्रा भयं महे पुनश्च सामान्ये तत् पशुभिः नराणाम् ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः। भगवान मनुस्मृति में इशारा किया है कि पशु और मनुष्य में कितना अंतर है। आहार भोजन मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। निद्रा निंद पशु को भी आती है और मनुष्य को भी आती है। भयं डर मनुष्य को भी लगता है और पशु को भी लगता है। संतान जन्म पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। सामान्य पशु भी नराणाम्, ये मनुष्य और पशु में सामान्य क्रिया दोनों में बराबर ही काम है। तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? मनु कहते हैं ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो, खाने पीने सोने आदि का ज्ञान तो पशु को भी है, लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जो मात्र मनुष्य को है, पशु को नहीं। वह है अध्यात्म का ज्ञान। ये ज्ञान मनुष्य को है कि परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है, इस संसार में भेजा है, तो मैं परमात्मा का स्मरण करूं, उनकी कथा सुनूं, उनका भजन करूं। ऐसा ज्ञान पशु को नहीं। और जिस मनुष्य को ऐसा ज्ञान नहीं है, उसके लिए भगवान मनु ने कहा पशु भी समाना। सकल भले मनुष्य का है, लेकिन वास्तव में वो पशु ही है। ये अंतर है पशु और मनुष्य में। इसीलिए देवता लोग कहते हैं कि मेरा जन्म मनुष्य में हो। और मर्त्य लोग देवलोक में देवताओं के भोग ऐश्वर्य के इतने साधन हैं कि उसी में लीन हो जाते हैं। भगवान का भजन देवलोक में नहीं हो सकता, भगवान का भजन मात्र मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में ही हो सकता। इसलिए इस मनुष्य लोक में आना चाहते हैं देवता। और भारत भूमि भागे, भारतवर्ष में मेरा जन्म हो, क्योंकि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। दूसरे देश के पीछे अगर आप माता शब्द का प्रयोग करें, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन आदि, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। और अगर भारत के पीछे माता शब्द आप लगाते हैं तो सुनने में भी अच्छा लगता है और लोग भारत माता की जय भी कहते हैं। यही कारण है कि देवता भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, इस मर्त्य लोक में और मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियां हैं और जब इन 84 लाख योनियों की समाप्ति हो जाती है, तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता। शास्त्रकारों ने लिखा 20 लाख स्थावर मानो, 9 लाख सब जलचर जानो, 11 लाख पूर्ण कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बनाए, 30 लक्ष पशु जानहु भाई, 4 लाख वानर समुदाई। जब यह 84 कट जावे, तब मनुष्य को तन कह पावे। 20 लाख स्थावर मानो। स्थावर कहते हैं वृक्षों को, पर्वतों को, जो एक जगह स्थिर है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। ऐसे वृक्ष और पर्वतों की संख्या 20 लाख है। 9 लाख जलचर जानो और 9 लाख पानी में रहने वाले मेढक मछली आती है, इनकी भेड़ियां 9 लाख की है। 11 लाख पूर्ण कवि गाए और 11 लाख
जो पृथ्वी के अंदर कछुआ आती है, इनकी वैरायटियां हैं 11 लाख। पक्षी गण 10 लाख बनाए, जिसके पंख है जो उड़ सकते हैं, उनकी वैरायटियां 10 लाख की है। 30 लाख पशुजान हो भाई, और 30 लाख चौपाई जानवर, गाय, हाथी, भैंस, ऊंट, बैल आदि है, इनकी संख्या। और 4 लाख मानव समुदाय, और 4 लाख जो पर्वतों पर, वृक्षों पर रहने वाले रीछ, बंदर आदि हैं, इनकी संख्या है। इस प्रकार आप सबको मिलाते हैं तो ये 84 लाख जोड़ी बनती है। इन 84 लाख जोड़ियों के बाद तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा मानुषम दुर्लभम जन्मा, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। वेदांत दर्शन में 3 शब्द आते हैं, ज्ञात्वा, कृत्वा और मत्वा। ज्ञात्वा जानने की क्रिया में, कृत्वा करने की क्रिया में है, और मत्वा मानने की क्रिया में है। ज्ञात्वा जीव के लिए है, कृत्वा जगत के लिए है, और मत्वा जगदीश के लिए है। हे जीव, ये संसार में अगर आप आए हो तो संसार के साथ व्यवहार करो। माता पिता गुरु बंधु इत्यादि जो है, सबके साथ उचित व्यवहार करो। लेकिन मत्वा मानो जगदीश को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, इसने आपको यहाँ भेजा। इस संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। एक सिंहासन चढ़ चले जो राजा है, जो धर्म किया है, पुण्य किया है, उसके लिए तो धर्मराज पुष्पक विमान भेजेंगे, पुष्पक विमान पर बैठ कर वैकुंठ लोक जाएगा। लेकिन जो हम कहे गरीब है, जो अधर्म किया है, पाप किया है, उसके लिए जबराज आएगा, गले में बंधन बांध कर घसीटता हुआ नरक को ले जाएगा। जाना है दोनों, जो धर्म किया है उसने भी, और धर्म किया है उसको भी जाना। लेकिन थोड़ा अंतर है, जो धर्म किया है वो वैकुंठ लोक जाएगा, जो अधर्म किया है वो नरक लोक जाएगा। इसलिए अर्जुन संसार में आए हो तो कर्म करो, धर्म करो। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म। जो नहीं सुने राम गुणगाना, अगर कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती तो जैसे सांप का बिल है, वैसे इस कानों को समझना चाहिए। भगवान ने जीव ही जो नहीं करे राम गुणगाना, अगर जिह्वा की भगवान की कथा नहीं कही जाती तो जीव मेढक के जीव के समान है। कर पवित्र मुख पवित्र जब होते जपले सीताराम। पैर कभी पवित्र है जब पैदल आपने यात्रा करते हैं, और हाथ कभी पवित्र है जब इन हाथों से आप काम कर देते हैं, और मुख कभी पवित्र है जब भगवान के नामों का उच्चारण होता है। तो परमात्मा ने एक अंग बनाया, तो एक अंग का काम दूसरा नहीं कर सकता। इतनी गरीब कृपा है परमात्मा की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन संसार में आए हो तो धर्म करो, सत्य का पालन। महाभारत में जब 5 भाई पांडव वनवास में इधर उधर घूम रहे थे, एक दिन प्यास लगी, इसलिए आगे बढ़े, एक तालाब देखा। पहले सहदे तालाब में गए पानी पीने के लिए। एक आदमी बैठा हुआ था, कहाँ आए हो? पानी पीने के लिए। हाँ, एक सवाल है, जवाब दे दो फिर पानी पीना। कहा क्या? आश्चर्य क्या? सहदेव चुप हो गए, नकुल चुप हो गए, भीम चुप हो गए, अर्जुन चुप हो गए। धर्मराज
युधिष्ठिर की बारी आई, उनसे पूछा गया युधिष्ठिर जी आप बताओ आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आश्चर्य ये है कि 80 साल का बूढ़ा भी बैठा हुआ है और उसके सामने 30 वर्ष का नवयुवक है, इसकी मृत्यु हो गई। मरना चाहिए बूढ़े को, लेकिन उस नवयुवक की मृत्यु हो गई। 4 नवयुवक उसे कंधों पर उठाकर श्मशान ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में 4 नवयुवक उसे देखकर हंस रहे। किसी ने कहा तू देखकर हंस रहे हो, क्या जानते हो मौत तुम्हारे सिर पर भी पहुंच रही है, बूढ़े को मरना चाहिए, मर गया और तुम हंस रहे हो। सज्जनों, घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश का टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, समुद्र के तरंगों को भूखा जा सकता है, लेकिन आयु में आस्था नहीं। धर्मशास्त्रों ने लिखा 24 घंटे में 21,600 बार सांस चलती है, लेकिन इसकी पूर्ण गारंटी नहीं कि सांस पूरी होगी कि नहीं। इसलिए महात्मा कबीर ने कहा काल करे सो आज करे सो कल होगा अभी करोगे क्या। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अभी करो। क्योंकि आपने कितना काम किया और कितना काम बाकी है, काल इसका इंतजार नहीं करता। मालिया देख के कलिया गई पुकार, फूले फूले से चुन के कल हमारी बात। फुलवाने का माली आया, जो अभी छोटी छोटी कली है आपस में बात करती है, बहनों देखो माली आ गया। ये जो आज फूल है ना, कल ये भी कली थी, आज फूल माली आया, फूल को ले जाएगा। हम आज कली हैं, हम भी कल फूल बनेंगे, माली आएगा और हमें भी ले जाएगा। एक एक करके काल आएगा और ले जाएगा। मृत्यु निश्चित है, जो आया है सो जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म होगा। इसलिए शरीर का कोई ठिकाना नहीं। किसी कवि ने कहा सर्वधर्म कन्या कल प्राप्त को जाने फिरे लिखे नया मिलकी शीतल गंध सुगंध समीर चले चले कलिकाल करार लिए फिरता अनंत है जो धीरे धीरे निशिभासर नाम चौरसना फिर अंत समय रहे। गोपाल गोधाम गौशाला पहले बहुत बुरा हाल था। कीचड़ में लोग जाते थे गौशाला गाय के दूध लेने के लिए, लेकिन आज बाबूजी की देन है, इनकी कृपा है, आज वही गौशाला जो कीचड़ में नहीं। बड़ी भूमिका है गौशाला निर्माण में बाबूजी की। आज वही गौशाला है जो इमारत बनी हुई, गाय माता आनंद कर रही गौशाला में, झुकी झोपड़ी में रहने वाला गौ सेवा करने से आलीशान भवन में रह रहा। ये देन बाबूजी की 25 साल मुझे होने वाला अपने मंदिर में बाबूजी ने रखा और कहा था जो भी आपको मुश्किलें हो मैं तैयार। इनकी कृपा है जो नई स्मृति यादगारी गौशाला की बनी रहेगी, ये इनकी कृपा। आज भले चले गए, लेकिन इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहकर मात्र 2 मिनट टाइम लेता हूं, क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ है, इसका महत्व है। मात्र 2 मिनट में बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। श्री भगवान वाच विद्याघातम सर्वमोहनेयं धार्यं परिसुर्भावै प्रमुच्यते
इदं श्याम सुंदरमा विद्ये मुक्ति प्रदायकं शिवान सुंदे भक्ते सुभद्रं निरंतरं कुलीचन नासिकानाथमा देशां को हिंदवात्म संशयः। इस गरुड़ पुराण में 16 अध्याय। गरुड़ जी ने अनेकानेक प्रश्न किया। संतान का जन्म कैसे होता है, जीव की जब मृत्यु होती है तो कैसे कहाँ जाता है, नरक कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, जितने प्रश्न किया है गरुड़ जी ने सबका समाधान भगवान विष्णु किया है। और अंत में कहा है कि हे गरुड़, मेरी भक्ति सर्वोपरि, इसलिए मेरी भक्ति और भगवान का भजन करना चाहिए। जीवों का कल्याण इसी में, नहीं तो ये संसार देखने में सत्य लगता है लेकिन वास्तविकता है कि सत्य नहीं। मां पार्वती ने शिव से पूछा, भोलेनाथ इस संसार के बारे में कुछ कह सकते हैं? माता ने कहा, पूछा, भगवान शिव ने कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सर सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव करता हूँ कि सत जो सत्य है वह हरि है, इसलिए हरि का भजन करो। नहीं तो यह संसार देखने में लगता है कि सत्य है लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे अंधेरी रात में रस्सी रखी रहती है और भ्रम हो जाता है कि यह सांप है, तो देखने में संसार लगता है सत्य है, वास्तव में सत्य नहीं। तो सभा में बहुत ही अच्छे ढंग से कथा उपस्थित करने वाले महान पंडित जी, माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, श्री कमल जी चावला जी से ये ज्ञात हुआ श्री राम स्वरूप जी चल बसे हैं और ये सुन करके गीता की पंक्तियां, वेदों का सार हम सबके सामने आया कि वेद में ठीक कहा है, मृत्यु ईटे चतुष्पदा, जो भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में पक्षी आदि हैं, 4 पांव वाले, उनकी मृत्यु भी अनिवार्य है। और जो मानव जन्म लेकर के आया है उसकी भी मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, और जिसकी मृत्यु हुई है अपने कर्मों के अनुसार उसका जन्म भी अनिवार्य है। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य बन जाता है। आज ये बाबूजी की तस्वीर, राम स्वरूप जी की, ये हमें प्रेरणा दे रही है। तस्वीर कभी बोलती नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं भी कभी आपकी तरह शोक सभा के अंदर उपस्थित हुआ करता था, किसी दुख में किसी सुख में जाया आया करता था, और सुंदर गृहस्थाश्रम में रहते हुए लाला जी ने अपनी धर्मपत्नी के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसलिए शास्त्र में कहा विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च।
लाला जी एक स्वाध्यायशील थे, वेदों का अध्ययन करते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, अन्य शास्त्रों को पढ़ते भी थे और सुना भी करते थे। यही कारण है कि वो उनको लोक और परलोक का भी ज्ञान था। और साहित्यकार ने बहुत अच्छी बात कही है कि घर में मित्र कौन है, तो यहाँ पर कहा घर में अगर कोई मित्र के रूप में है तो वो गृहिणी के रूप में है, पत्नी जो है वो मित्र के रूप में है, और पत्नी के लिए पति जो है वो बंधु के रूप में है, सखा के रूप में है। ना सा सखे जो नद जाती, वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र के सुख में दुख में काम नहीं आता। तो लाला जी अपनी धर्म पत्नी के प्रति क्या धर्म है वो उन्होंने शास्त्रों को पढ़ करके उनके अनुसार आचरण करते हुए उसको अपने कर्तव्य को निभाया। लाला जी के 3 बेटे श्री राकेश जी, श्री विपिन जी, श्री संजीव जी। राकेश जी तो उनके होते हुए ही चल बसे थे, लेकिन आज विपिन जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पंडित जी कह रहे थे कि उन्होंने गौशाला का बहुत कार्य किया, वो एक बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े परोपकारी थे, यशस्वी उनका जीवन था। ऐसे ही पुत्र उनको कहते हैं, वरम एक गुणी पुत्र नाचा मूर्खा शतन्यपि एका चंद्रा चमो हंती नाचा तारा गनो पिचा। शास्त्रकार ने कहा पुत्र चाहे एक ही हो लेकिन गुणवान पुत्र हो। उन पुत्रों की गणना होनी चाहिए, समाज के अंदर राष्ट्र के अंदर गणना होनी चाहिए। अपने पिता का नाम ऊंचा करे, अपनी माँ का नाम ऊंचा करे, अपने कुल को प्रकाशित करे, उनको इष्ट पुत्र क्या करके पुकारा जाता है। आज श्री विपिन जी से निवेदन है कि आप घर के बड़े हैं, आपने अपने भाइयों का भी ध्यान रखना है, अपने कुल की मर्यादाओं का भी पालन करना है, छोटे भाइयों को भी साथ लेकर के चलना है, रिश्तेदारों के सुख में दुख में सम्मिलित होना, ये पुत्रों का धर्म नहीं परम धर्म बन जाता है। इसलिए वेदों के अंदर शास्त्रों के अंदर कहा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार के अंदर जिनका यश है, कीर्ति है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, क्योंकि उन्होंने दान किया, पुण्य के कार्य किए, परोपकार के कार्य किए, और चाहे उनकी मृत्यु हो गई लेकिन फिर भी उनका यश है, कीर्ति है, वो एक जीवित के रूप में है। और कुछ लोग ऐसे हे अर्जुन जो जीवित है लेकिन वो मृत्यु के रूप में है, क्योंकि उनका आप यश है, आप कीर्ति उनकी है, उन्होंने कभी भूल करके भी दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी किसी के आंसू नहीं पूछे, कोई श्रेष्ठ काम नहीं किया, नेकी का काम नहीं किया। ऐसे लोग जो होते हैं वो जीवित तो होते हुए भी मृत्यु के रूप में है। इसलिए पंडित सत्यपाल जी पथिक जी ने अपने भजनों की पंक्तियों में कहा है, ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसे काम करके हमें संसार से जाना चाहिए जो परलोक में ये धन हमारे काम आए। इसलिए कहा विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि नस्य औषधम मित्रम धर्म मित्रम मृतस्य च। अंतिम समय में अगर किसी ने हमारा साथ देना है, हमारे साथ
साथ जाना है तो वो धर्म ही जाता है, किए हुए नेकी के काम ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए ठीक है, हमारी वाणी के अंदर चंगे मार्ग चल दिए, स्तुति करे जहां, जो अच्छे काम करके इस संसार से जाता है, सारा जहान उस व्यक्ति की स्तुति करता है। आप गला के लिए जो आया सोचा सी सरती है उन्होंने बड़ी गल्लां कीतियां गईयां। मेरे तो पहला शास्त्री जी ने बड़े विस्तार में दस्या कि साडे सुल्तानपुर की कोई संस्था इहो जी होगी जिथे उन्होंने अपना हिस्सा नहीं पाया, योगदान दिता। और कई बार वो गुप्त कर जाते थे कि मैं करना वा, सो उन्होंने सोच कोई नहीं समझ सकता सी। उन्होंने हर संस्था जिन्नियां इत्थे है उन्होंने मैंबर एस टी सभा के मैंबर, मंजिल कमेटी के मैंबर बने, मैनेजर बने। अपने समय में बड़ा वधिया तरीके के नाल उन्होंने काम किया और लोग आज उस गल में याद करते हैं। साढ़े विच बहुत सत्कारयोग साढ़े इलाके के MLA सरतेज सिंह चीमा जी भी आए हैं, धन्यवाद। इन्होंने भी उन्होंने परिवार के नाल, साढ़े परिवार के नाल इस तरह का रिश्ता कि जिदा कि असीं भैन भरा होंगे, साढ़े अपना सरकार होंगे, भरा होंगे साढ़े। चीमा चाहे इन्हों की गल करिए, चाहे बड़े चीमा साहब की गल करिए, जो मंडी में जाना तो पहले बहुत हाउसफुल की दुकान पर जाता है। बहुत अमरचंद जी, विनोद गुप्ता जी, ये सारे बंदियां उन्होंने मिलने तो बाद फिर उन्होंने किसी होर पास बनाया। सो कहने बड़ा कुछ है, बोलने में बड़ा कुछ बोलिया जा सकता। मेरे घर के गुआढ़ी साढ़े मोहल्ले के रोड़ा रस्ता डिस्ट्रिक्ट सत्संग करवाने में बड़ा बड़ा योगदान रहा। मंडी शिवजी महाराज का मंदिर बनया हुआ, वो बड़ा योगदान रहा उन्होंने वालों में शोक सरोवर होया। गोपाल गुरु धाम जिदा कि मेरे को पहला पंडित जी ने दसिया, उन्होंने बारे भी विस्तार के नाल उन्होंने चानना पाया कि किस तरह की उन्होंने सोच सी। वो सोच के हिसाब से चलते होंगे सी, साड़ी सोच तो बड़ी गांह सोच सी। मैं एक गल जरूर कर दूंगा, तिने बेटे सीगे, 2 बेटे सामने बैठे हैं केज के जाने तो बाद, और हुण उन्होंने की तबीयत के वेले जो उन्होंने तबीयत ठीक नहीं सी रही तो मेरे ख्याल गड्डी स्टार्ट नहीं थी, घर ही खड़ी रही थी। और जो कि गल करनी या मुकरने या संजीव ने उन्होंने कहना जी चलो बाबा जी चलिए। तो मैं कई बार आप ही देखना तो दूसरे दिन बिल्कुल हस के उन्होंने मेरे नाल बोलना तो कहना कि असीं हॉस्पिटल गए सी, जाके दिखाया। तो इस करके उन्होंने चले जाना साढ़े परिवार वास्ते जिथे एडा वड्डा घाटा वा, मैं समझना उत्थे शहर में बहुत बड़ा घाटा। हुण मैं ज़्यादा समा नहीं लूँगा, मैं बेनती करूँगा एक नीलकंठ माँ के भला कमेटी लुधियाना सिविल लाइन बहुत शुभ प्रस्ताव आया, धन्यवाद उन्होंने भी। एसडी कॉलेज फॉर वुमेन एसडी सभा वालों शुभ प्रस्ताव आया, उनका भी धन्यवाद। हूँ मैं बेनती करूँगा मेरे बहुत सत्कार जो साढ़े इस इलाके के रहनुमा सरतेज सिंह जी चीमा, वो और 2 मिनट वास्ते अपने शब्द के फुल सरतेज सिंह जी इस सुल्तानपुर इलाके लिए भी ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो मैं तो बड़ा छोटा सी ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। 5-6 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਦਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੜੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੋਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮਾਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਗਲੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਅਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਰੀ ਸਾਸਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਮੰਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚੁੱਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਮਾ ਮੰਗੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਲੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। और स्पेशली तौर पर अरोड़ा वकील साहब वो भी बैठे हैं। तो मैं आप सबका एक बार दिलों धन्यवाद करता हूँ। मैं बेनती करूँगा हाथ जोड़ के कि प्रशादा जरूर छक के जाइयो, दिन दिन किसी भी नेता उस हिसाब से छक गए, क्योंकि घर वालों बहुत जरूरी किया गया कि कोई बंदा भी बगैर इस गल को ना करे। आप सबका बहुत धन्यवाद, तुम साढ़े दुख में शरीक हो, असीं तुहाडा हर कदम में सुनिए। जय ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, हमसे दूर होकर भी हमारे पास हो आप, हमारी सोनी जिंदगी की आस हो आप, कौन कहता है बिछड़ गए हो आप, यादों के रूप में पल पल पास हो आप।